Hello guys, welcome to all of you. Today I will explain about santonin. This is one of the most important type of sesquiterpenoids, and this is mostly used in uh, as a medicines. This use is pharmaceuticals use. So this is one of the most important terpenoids which are explained here now. So the santonin occurs in various species of Artemisia. Its main source is dried, unexpanded flower of Artemisia marittima. This contain about 1.5% of alpha santonin. It was widely used in medicines as an anthelmintic acid. This is the one type of anthelmintic acid, a substance which expel intestinal worms. The use of santonin is such a way that in case of medicinal plants, or we can say that in case of medicines, in the form of which expel the intestinal worms outside. So santonin possesses the Eudisman skeleton, but it is sesquiterpenoid lactones. तो सेंटोनिन जो है वो एक टाइप का सस्क्यूटरपिनॉइड लैक्टोन्स होता है. हमने पिछले केसेस में आपको बताया था टर्पेनॉइड्स के बारे में कि टर्पेनॉइड्स एक्चुअली होता क्या है, कि जैसे टर्पेनॉइड कई कैटेगरी में सब डिवाइडेड किया गया है कि इसमें कुछ आपका मोनोटर्पेनॉइड, डाइटर्पेनॉइड, सेस्क्यूटर्पेनॉइड. तो सेस्क्यूटर्पेनॉइड भी ये टर्पेंटाइन का एक पार्ट है, और उसी पार्ट का सेंटोनिन एक मॉलिक्यूल्स है, या एक तरह से हम कह सकते हैं कंपाउंड्स है. और ये मेन कंपाउंड्स जो है ये मेडिसिनल यूज़ इसका ज़्यादा किया जाता है. सबसे ज़्यादा इसका यूज मेडिसिन्स में होता है, क्योंकि ये एक तरह का प्रोसेस क्रिएट करता है हमारी बॉडी में. एक्चुअली ये इंटेस्टाइनल जो हम मेडिसिन्स लेते हैं वो दैट इज़ रिलेटेड विद द worms which are present in our intestine, which are expelled out of outside, जैसे आउटसाइड हो जाता है. तो ऐसे बहुत सारे, और ये मेडिसिन जो है छोटे बच्चों में या जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं उनके लिए ज़्यादातर दिया जाता है. Actually, the structure of santonin is illustrated in following types, which have the following characters. So I will explain one by one. First of all, I will explain about its molecular formula. How can we determine that the molecular formula of santonin will be C15H18O3? There are so many types of we can say that experimental analysis by which it was proved that santonin has C15H18O3 molecular formula. This was explained on the basis of their elemental or experimental analysis and their molecular weight determinations. On this basis, this also indicates that it is a sesquiterpenoid and nature of 3 oxygen atoms. These 3 oxygen atoms which are available in the ring or out of the ring, 1 is in the ring or 2 is the ring, this can be explained further. Santonin forms monooxime with hydroxylamine. ये रिएक्शंस देखा जाता है कि ये मोनोऑक्साइम का फॉर्मेशन करता है, मोनोऑक्साइम. And this formation of monooxime shows that one of the oxygen is present in the form of carbonyl group. तो ऑक्साइम फॉर्मेशन ही इंडिकेट करता है
कि C डबल बॉन्ड O से जब हाइड्रोक्सिलेमीन का रिएक्शन होता है NH2OH का, तो H2 हाइड्रोक्सिलेमीन से और ऑक्सीजन कार्बोनिल से एलिमिनेट हो जाता है वाटर के फॉर्म में, और वहाँ पर ऑक्साइन का फॉर्मेशन होता है, जो इंडिकेट करता है, अगर इसको कुछ इस तरह से दिखाना चाहें तो, सच वे दैट दिस इज C डबल बॉन्ड O, दिस इज कार्बोनिल ग्रुप, और ये है आपका हाइड्रोक्सिलेमीन H2N, और यहाँ OH है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं H2O यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है और यहाँ बन जाता है क्या, C डबल बॉन्ड NOH। ये है आपका ऑक्साइन, ये जहाँ भी अटैच्ड होगा जिस मॉलिक्यूल से, उसे ऑक्साइन कहा जाता है। तो इस तरह का जो ऑक्साइन फॉर्मेशन साइनोटिन सोर्स करता है, वो एक कन्फर्म करता है कि इसमें जो एक ऑक्सीजन एटम वो कार्बोनिल ग्रुप के फॉर्म में प्रेजेंट है। बट अल्ट्रावायलेट experimental determination, it was proved that it has a absorption maximum that is near about 236 nanometer, and its epsilon value is 11,200 or so. Santonin shows that carbonyl group is present in the form of alpha beta unsaturated ketone. This is because जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम है ये इक्विवेलेंट टू सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स विच हैव अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, यानी एब्जॉर्प्शन ये वहाँ पे ही प्रेजेंट होता है जिसमें C डबल बॉन्ड O के रूप में प्रेजेंट होता है। तो इससे ये प्रूव होता है कि इसमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन प्रेजेंट होता है। Santonin is a neutral compound. Neutral, what is stand for neutrality? It does not give positive test for hydroxyl group and carboxylic group. यानी ये पॉजिटिव टेस्ट जो है ये नहीं देता है कार्बोक्सिलिक के लिए या फिर हाइड्रोक्सिल के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है उसका कोई विशेष रोल नहीं है, या फिर ये जो सेंटोनिनिक एसिड का फॉर्मेशन करता है तो वहाँ भी कार्बोक्सिलिक जो है कोई टेस्ट नहीं देता। इससे ये पता चलता है कि सेंटोनिन बिहेव एज न्यूट्रल कंपाउंड। सो ऑन द बेसिस ऑफ IR स्पेक्ट्रा और IR स्पेक्ट्रल डिटर्मिनेशंस, it has the infrared spectrum at 1770 centimeter inverse, which is shown by the carbonyl group. This shows that it has gamma lactones. It does not have carboxylic or hydroxylic. This has the gamma lactones. गामा लैक्टोन क्या होता है? लैक्टोन्स किसे कहते हैं? लैक्टोन्स का मतलब होता है कि जो साइक्लिक एस्टर होते हैं उसे लैक्टोन्स कहा जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेंटोनिन में साइक्लिक एस्टरिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, साइक्लिक एस्टर, इसलिए इसमें गामा लैक्टोन्स, इसे गामा लैक्टोन। एक रिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं, हियर व्हेन यू सी, जब इसके रिंग में आप यहाँ देखेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं कि सेंटोनिन हैविंग यहाँ देखिए दिस इज साइक्लिक एस्टर, ये साइक्लिक एस्टरिक ग्रुप है, इसीलिए इसको लैक्टोनिक ग्रुप कहा जाता है, लैक्टोन्स कहा जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल ग्रुप है, यानी चाहे आप इधर से लें डबल सिंगल डबल, चाहे आप डबल सिंगल डबल इधर से लें, तो यहाँ अल्फ़ा बीटा, ये है आपका अल्फ़ा या बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल ग्रुप है। तो ये प्रूव करता है कि इसमें लैक्टोन्स प्रेजेंट होता है कार्बोक्सिलिक और हाइड्रोक्सिल की जगह। द नेक्स्ट वन इज द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। कौन से एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस किया जाए और प्रूव किया जाए कि सेंटोनिन में कितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे ये जो है एंडोसाइक्लिक होंगे या फिर एक्सोसाइक्लिक होंगे, इन द रिंग होंगे या आउट ऑफ द रिंग होंगे।
एक तरह से इनसाइड द रिंग हो गए या आउटसाइड द रिंग हो गए। तो सेंटोनिन ऑन कैटालिटिक रिडक्शन, ये डबल बॉन्ड प्रेजेंटी जो है एक रिडक्शन के थ्रू प्रूव किया जाता है कि जैसे मान लीजिए एक डबल बॉन्ड है 2 हाइड्रोजन जुड़ेगा, 2 डबल बॉन्ड है 4 हाइड्रोजन जुड़ेगा, 3 डबल बॉन्ड है तो 6 हाइड्रोजन जुड़ेगा एंड सो ऑन। तो ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन पर डिपेंड होता है कि जितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन जुड़ता है इन पेयर में जितने पेयर जुड़ते हैं उतना डबल बॉन्ड इसमें अवेलेबल होता है। तो इस तरह से देखा जाए कैटालिटिक रिडक्शन के थ्रू तो सेंटोनिन जो है टेट्राहाइड्रोसेंटोनिन बनाता है, टेट्राहाइड्रोसेंटोनिन का फॉर्मेशन करता है। और ये टेट्राहाइड्रोसेंटोनिन का मतलब हुआ कि इसमें this has 2 double bonds because there are 4 hydrogen, that is 2 pair, so this has 2 double bonds and these double bonds are inside the ring, this is not outside the ring, this is the inside the ring, ये रिंग में प्रेजेंट होता है। नेचर ऑफ द स्केलेटन, व्हाट इज द नेचर ऑफ स्केलेटन ऑफ द कार्बन एटम, कार्बन का जो है वो कार्बन स्केलेटन का नेचर किस टाइप का है। तो ये देखा जाता है कि अगर सेंटोनिन का जिंक डस्ट के साथ डिस्टिलेशन करा दिया जाए तो फॉर्मेशन होता है मिक्सचर ऑफ 1,4-डाईमिथाइल नेफ्थलीन का एंड 1,4-डाईमिथाइल नेफ्थॉल का। नेफ्थलीन और नेफ्थॉल ये दोनों बनता है और इस साथ ही साथ एक बाई प्रोडक्ट प्रोटीन बनता है। तो जिससे ये कंफर्म होता है कि इसमें फॉर्मेशन ऑफ दीज 2 कंपाउंड शोज दैट सेंटोनिन हैज़ ए नेफ्थलीन स्केलेटन। इसमें इसका जो स्केलेटन होगा वो नेफ्थलीन टाइप स्केलेटन होगा, यानी जिसमें 2 रिंग जो है आपस में फ्यूज होंगी। तो यहाँ पर आप रिएक्शन देख सकते हैं, सेंटोनिन आर ट्रीटेड विद जिंक डस्ट अंडर डिस्टिलेशन, दिस फॉर्म दी 1,4-डाईमिथाइल नेफ्थलीन एंड 1,4-डाईमिथाइल नेफ्थॉल। तो ये प्रूव करता है कि इसमें जो है नेफ्थलीन रिंग प्रेजेंट है। नेक्स्ट वन, अगला प्रूफ है कि कैसे हम प्रूफ करें कि इसका स्केलेटन नेफ्थलीन का ही स्केलेटन है। तो ये प्रूव किया जाता है कि सेंटोनिन एंजाइम ऑन रिडक्शन विद जिंक H2SO4 गिव्स सेंटोनएमीन, सेंटोनएमीन का फॉर्मेशन करता है, सेंटोनएमीन। आई विल शोज द स्ट्रक्चर फर्दर, which on further reduction with nitrous acid suffers hypocentonin. Hypocentonin on oxidation with I2 in the presence of acetic acid gives centenic acid, and this centenic acid gives 7-ethyl 1-methyl naphthalene when treated with barium hydroxide. Centenic acid also gives dihydrocentenic acid when treated with ethanolic HCl. This dihydrocentenic acid gives 7-ethyl 1-methyl naphthalene when treated with barium hydroxide. This means that here you see that in both the cases there is formation of naphthalene as a product. This proves that सेंटोनिन has naphthalene type of skeleton. इसका जो skeleton होगा वो naphthalene type का होगा। Third one is the tetrahydrocentonin on catalytic reduction yields hexahydro derivative. क्लेमेंजन रिडक्शन ऑफ टेट्राहाइड्रोसेंटोनिन yields, क्लेमेंजन रिडक्शन में क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप एल्केन में कन्वर्ट होता है। किसके प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड HCl के प्रेजेंस में। तो क्लेमेंजन रिडक्शन ऑफ टेट्राहाइड्रोसेंटोनिन yields डीऑक्सी टेट्राहाइड्रोसेंटोनिन एंड hexahydrocentonin and deoxy tetrahydrocentonin on dehydrogenation with selenium gives 7-ethyl 1-methyl naphthalene. This finally proved that centonin must contain naphthalene skeleton. Here you see that the reactions are shown here. First of all, this सेंटोनिन निकिल और हाइड्रोजन के साथ इसका रिडक्शंस कराया जाता है, टेट्राहाइड्रोसेंटोनिन का फॉर्मेशन होता है और पुनः जो रिडक्शन होता है हेक्साहाइड्रोसेंटोनिन का फॉर्मेशन होता है। तो जो हेक्साहाइड्रोसेंटोनिन या जो फॉर्मेशन हो रहा है इसका ये प्रूव कर रहा है देयर आर प्रेजेंट ऑफ 2 डबल बॉन्ड्स
आफ्टर दैट जिंक अमलगम एंड कॉन्क HCl के प्रेजेंस में टेट्राहाइड्रोसेंटोनिन डीऑक्सी टेट्राहाइड्रोसेंटोनिन का फॉर्मेशन करता है और वो जो है सेलेनियम ऑक्साइड के साथ रिड्यूस्ड हो जाता है और इस तरह से यहाँ पर 7 इथाइल और 1 मिथाइल नेफ्थलीन का फॉर्मेशन मिलता है। इन बोथ द केसेस में, दोनों में आप देख सकते हैं, चाहे वो टेट्राहाइड्रोसेंटोनिन हो या हेक्साहाइड्रोसेंटोनिन हो, दोनों हो यहाँ पर, चाहे आपका ये टेट्राहाइड्रोसेंटोनिन हो या हेक्साहाइड्रोसेंटोनिन हो, यहाँ सेलेनियम के प्रेजेंस में रिडक्शन कराया जाता है और यहाँ जिंक डस्ट यानी जिसको हम क्लेमेंजन रिडक्शन कहते हैं उसके प्रेजेंस में रिडक्शन कराया जाता है। तो यहाँ प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन होता है वो सेम होता है। इससे ये प्रूव होता है कि इसमें नेफ्थलीन स्केलेटन प्रेजेंट होता है। एक्चुअली ये जो नेफ्थलीन स्केलेटन है, तो चूंकि नेफ्थलीन दो बेंजीन न्यूक्लियस आपस में फ्यूज्ड होता है, तो एक्चुअल नेफ्थलीन जो है वो बेंजीन न्यूक्लियस कंटेन करता है। तो ये कहना जो है अतिशयोक्त होगा कि इसमें बेंजीन न्यूक्लियस है, तो इसमें एक्चुअल में तो बेंजीन न्यूक्लियस होता नहीं, ये साइक्लिक रिंग होती है। जैसे इन साइक्लिक रिंग को हम कुछ इस तरह बना सकते हैं, लाइक दिस, ये देखिए, ये लाइक दिस। तो ये जो रिंग है ये नेफ्थलीन में अवेलेबल होता है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए, जो मेन कन्फर्मेशन है इसका कि एक कंपाउंड है, जैसे यहाँ हम ले लें यहाँ CH3 और यहाँ ले लें CH3 और यहाँ ले लें आइसोप्रोपाइल ग्रुप CH3 जोड़ दें, जिसे यूडेस्मेन कहते हैं। यूडेस्मेन, दिस इज कॉल्ड यूडेस्मेन। हियर यू सी दैट हियर इज द यूडेस्मेन आर रिप्रेजेंटेड हियर, दैट अंडर रिडक्शन फॉर्म दिस कंपाउंड, जिसके रिडक्शन से यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एक बाईसाइक्लिक सेस्फिटरपीन है, यूडेस्मिन जिसे हम कहते हैं, विच ऑन डिहाइड्रोजनेशन विथ सेलेनियम गिव्स 7 आइसोप्रोपाइल 1 मिथाइल नेफ्थलीन। यहाँ आप देख सकते हैं देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 7 आइसोप्रोपाइल 1 मिथाइल नेफ्थलीन, 1 मिथाइल नेफ्थलीन। हियर इज काउंटिंग आर given such as 1 2 3 4 5 6 and 7 and 8। इस तरह से यहाँ काउंटिंग की जाती है, जहाँ पर वी हैव टू मूव जस्ट लाइक क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड द लीस्ट ग्रुप वेयर इज अवेलेबल दैट इन द फॉर्म ऑफ अल्काइल ग्रुप द काउंटिंग is given number 1 and so this is further move in clockwise direction। So these results shows the सेंटोनिन should have following skeleton। तो जो इसका स्केलेटन होना चाहिए वो किस तरह का होना चाहिए, ये फाइनल स्केलेटन है इसका, आप यहाँ देख सकते हैं दिस स्केलेटन, ये फाइनल स्केलेटन है सेंटोनिन का, जिसमें दो बाईसाइक्लिक रिंग जो है एक्सेन रिंग आपस में फ्यूज्ड है और एक के ब्रिज हेड पर अल्काइल ग्रुप जुड़ा है और एक के ब्रिज कार्बन से अल्काइल ग्रुप जुड़ा है, ब्रिज हेड और ब्रिज कार्बन, और दूसरे के ब्रिज कार्बन पर एलाइल या इथाइल ग्रुप जुड़ा है। तो ये जो स्केलेटन है, इस स्केलेटन को यूडेस्मेन स्केलेटन कहा जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेंटोनिन है हमारा, वो मेनली दिस इज द स्केलेटन ऑफ यूडेस्मेन एंड दिस यूडेस्मेन इज द प्रिकर्सर ऑफ सेंटोनिन, यानी इसी से जो है सेंटोनिन का फॉर्मेशन कराया जाता है। तो इस तरह से देखा जाए द पार्शियल स्ट्रक्चर ऑफ सेंटोनिन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई, तो इसमें यूडेस्मिन एक रिंग हो जाएगा आपका, प्लस 2 डबल बॉन्ड्स प्लस 1 कीटो ग्रुप प्लस 1 गामा लेक्टोन रिंग। ये सारे प्रूव करते हैं, हियर ऑल दीज प्रूव दैट this is the main characteristics of serotonin structure and all these functions are available in that structure। So on this basis we can make the structure of serotonin very accurately। So on further explanation, the serotonin gives desmotropin
desmotroposentonin. This is the desmotroposentonin. What do you mean? What is desmotroposentonin? Desmotropo इसलिए कि इसमें यूडेस्मैन रिंग प्रेजेंट होता है ना, यूडेस्मैन. When treated with cold concentrated hydrochloric acid, desmotroposentonin is an aromatic compound which is formed by the rearrangement, डाइनोन-फिनॉल rearrangement. ये डाइनोन-फिनॉल rearrangement के थ्रू ये फॉर्म होता है. Both are isomeric compound. Here you see that the sentonin is converted into desmotroposentonin. और इसमें आप देख सकते हैं कि जो बाईसाइक्लिक रिंग है, एक साइक्लोहेक्सिल रिंग है, दूसरा जो है बेंजीन न्यूक्लियस है. तो ये बेंजीन न्यूक्लियस और इसके बाद एक साइक्लिक एस्टर ग्रुप लगा हुआ इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में, और जहाँ उस पर जो है एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट ऐड है. So under rearrangement of sentonin into desmotroposentonin can only be explained if sentonin has the following structure. तो ये तभी प्रूव होता है, ये इसका फॉर्मेशन तभी होगा कि जब सेंटोनिन, यहाँ जो स्ट्रक्चर फर्स्ट दिया गया है, दिस इज द एक्यूरेट स्ट्रक्चर ऑफ सेंटोनिन. ये सेंटोनिन का एक्यूरेट स्ट्रक्चर है. दिस वन इज द मेन स्ट्रक्चर ऑफ सेंटोनिन. और ये फाइनली कंफर्म किया गया है इस स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में, यानी जो डेस्मोट्रोपोसेंटोनिन का फॉर्मेशन होता है बाय द कोल्ड कंसनट्रेटेड HCl रिएक्शंस के थ्रू. तो जो ये प्रूव करता है, अब आप इसमें देख सकते हैं कि जो इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा रीअरेंजमेंट, यहाँ चूँकि ये बेंजीन न्यूक्लियस है, अब यहाँ इसको अगर कुछ इस तरह दिखाया जाए, ये डबल बॉन्ड यहाँ आए, ये डबल बॉन्ड यहाँ आए, इस तरह, और यहाँ ऑक्सीजन एटम अपना लोन पेयर इधर दे, तो यहाँ जो है इस तरह से इसमें रीअरेंजमेंट के थ्रू ये स्ट्रक्चर बन सकता है. कैसे, कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह, जैसे बेंजीन के साथ अगर यहाँ OH लगा है और जस्ट यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, तो आप देख सकते हैं जब ये ऑक्सीजन यहाँ आता है इसे, ये डबल बॉन्ड यहाँ आया, ये बॉन्ड रिंग के बाहर चला गया. तो जब ये बॉन्ड रिंग के बाहर जाता है आउटसाइड, यहाँ क्या होता है, एक डबल बॉन्ड यहाँ होता है, एक डबल बॉन्ड यहाँ होता है, एक डबल बॉन्ड यहाँ होता है, और ऑक्सीजन होता है प्लस, और हाइड्रोजन अपना बॉन्ड यहाँ दे के यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है. यहाँ बन जाता है क्या, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड. तो इस तरह का नेचर जो है सेंटीन में, देखिए आप यहाँ देख सकते हैं ये अवेलेबल है. So now I will explain the various type of reactions which are given by the sentonin. Here you see that first of all the rearrangement of sentonin into desmotroposentonin. How can the sentonin is rearranged into desmotroposentonin? So first of all here you see that the structure of sentonin under protonation. First of all one carbonyl group from here, this take up the proton and form oxonium ion. यहाँ oxonium ion formation करता है like this. और जैसे ही oxonium ion formation हुआ तो ये इसका जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड है, ये फर्दर डिफिशियंसी को फुलफिल कर देता है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि और यहाँ बना लेता है कार्बोकेटायन. यू कैन सी इन दिस स्ट्रक्चर हियर इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, आप देख सकते हैं. और जैसे ही कार्बोकेटायन फॉर्मेशन हुआ, देयर इज द शिफ्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप टेक्स प्लेस इन सच ए मैनर. अल्काइल ग्रुप जो है ये शिफ्ट कर जाता है यहाँ पर, और यहाँ बन जाता है आपका. जैसे ही अल्काइल ग्रुप शिफ्ट करता है, here this carbon becomes positive, you can see this carbon become positive, alkyl group want to shifting के थ्रू, और यहाँ से फिर डीप्रोटोनेशन होता है और ये बॉन्ड आ जाता है, और यहाँ इस तरह से यहाँ आप देख सकते हैं डेस्मोट्रोपोसेंटोनिन का फॉर्मेशन हो जाता है. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट
reactions which prove that the centonine has following types of structures. Now I will explain the various type of structures which are given by the centonine. Here you see that in the middle the centonine is represented here, and the lines which are shown in the rings that represent alkyl group. This is the bond type notation of centonine. The first of all, here you see that when जिंक डस्ट के साथ सेंटोनिन का रिएक्शंस कराया जाता है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 1,4 डाइनेफ्थलीन एंड डाइमिथाइल नेफ्थलीन एंड 1,4 डाइमिथाइल नेफ्थॉल, इसका फॉर्मेशन हो जाता है। और यह Cl के साथ रिएक्शन कराया जाता है तभी डेस्मोट्रोपिसन सेंटोनिन का फॉर्मेशन होता है। हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन कराती है तो आप देख सकते हैं ऑक्साइन का फॉर्मेशन होता है, सेंटोनिन ऑक्साइन, यानी H2O ऑक्सीजन से मिलकर निकल जाता है और NOH जुड़ जाता है चय से, यानी यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से दोनों हाइड्रोजन निकल जाएगा, NOH यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, आप देख सकते हैं NOH यहाँ पे, ये ऑक्सीजन है। नेक्स्ट वन इज द NaOH के साथ रिएक्शन कराने पर आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, रिंग की ब्रेकिंग हो जाती है, सेंटोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। सेंटोनिक एसिड वंस अगेन सेंटोनिन अंडर रिडक्शन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ टेट्राहाइड्रोसेंटोनिन विच इज कन्वर्टेड इनटू हेक्साहाइड्रोसेंटोनिन। और सेंटोनिन ऑक्साइम यहाँ सेंटोनेमिन का फॉर्मेशन करता है जब जिंक सल्फेट के साथ इसका रिएक्शन कराया जाता है। तो यहाँ देखिए यहाँ जिंक सल्फेट के साथ एमीन का फॉर्मेशन होता है और कैटालिटिक रिडक्शन होता है तो टेट्राहाइड्रो और हेक्साहाइड्रो का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद फाइनली देख सकते हैं दोनों सेलेनियम के प्रेजेंस में यहाँ पर 1-मेथिल एंड 7-एथिल नेफ्थलीन का फॉर्मेशन होता है। और इन द मीन टाइम दिस सेंटोन एमीन अंडर HNO2 यहाँ हिप्सोसेंटोनिन का फॉर्मेशन, और यह हिप्सोसेंटोनिन अल्कोहल और HCl के प्रेजेंस में डाईहाइड्रोसेंटोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ आप देख सकते हैं। और डाईहाइड्रोसेंटोनिक एसिड जो है पुनः बेरियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके ये फिर फॉर्मेशन करता है मिथाइल और इथाइल नेफ्थलीन का। एंड फाइनली हेप्सोसेंटोनिन आयोडीन और एस्टिल अल्कोहल के साथ सेंटोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और ये फिर भी ये फॉर्मेशन करता है दिस। तो ये सारे रिएक्शंस यहाँ नेफ्थलीन के जो फॉर्मेशंस हैं ये सारे रिएक्शंस एक तरह से देखे जाए तो दिस इज़ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सेंटोनिन एंड आल्सो दिस प्रूव दैट द कार्बन skeleton of सेंटोनिन by using this reactions. Now further on here some problems are given. In this problem the problem is that give the mechanism of the conversion of centonamine by hypsocentonin. इसका मैकेनिज्म कैसे होगा, तो मैकेनिज्म यहाँ पूछा गया है कि सेंटोनिन को हिप्सोसेंटोनिन में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराते हैं यहाँ पे। तो आपको पता होगा कि जब नाइट्रस एसिड से रिएक्शन होता है एमीन का तो वहाँ पे एजोटाइजेशन रिएक्शन होता है, और यहाँ आप देख सकते हैं नाइट्रस एसिड के साथ, और एक्चुअल में ये नाइट्रस एसिड सोडियम नाइट्राइट और HCl से आता है और वेरी लो टेम्परेचर पर ये रिएक्शन कराया जाता है जिसे डाईएजोटाइजेशन भी कहते हैं। तो यहाँ एमीन जो है ये एजोटाइज्ड हो जाता है एन डबल बॉन्ड एन में, और फिर अंडर रीअरेंजमेंट आप देख सकते हैं लिबरेशन ऑफ नाइट्रोजन ग्रुप एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन फॉर्मेशन हुआ। फिर एल्काइल ग्रुप की शिफ्टिंग होती है, एल्काइल ग्रुप शिफ्ट होता है और आफ्टर दैट 1,3 शिफ्ट जिसको बोलते हैं, और फिर इसके बाद हेप्टोसेंटोनिन का फॉर्मेशन हो जाता है। दिस इज ओवरऑल द मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हेप्टोसेंटोनिन। द नेक्स्ट वन प्रॉब्लम इज दैट हाउ सेंटोनिन is converted into dienamine benzene, yeah we can say that
सेंटोनिक एसिड में कैसे कन्वर्ट होता है। सेंटोनिन को सेंटोनिक एसिड में कन्वर्ट किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसका रिएक्शन कराया गया है। इट कन्वर्ट्स इनटू सेंटोनिक एसिड। द मैकेनिज्म आर शोन हियर। द फर्स्ट ऑफ ऑल द मैकेनिज्म टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ बेस. What happened here? When base attack, यहाँ पर बॉन्ड जो है ये ब्रेक हो जाता है हमारा। कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है? ये बॉन्ड ब्रेक होता है यहाँ बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और इस तरह से इंटर कन्वर्ट हो जाता है। आप देख सकते हैं कार्बोक्सिलेट आयन का फॉर्मेशन होता है एंड फर्दर जो है अंडर रीअरेंजमेंट देयर इज फॉर्मेशन ऑफ centonic acid. Here the intramolecular Michael additions takes place. I have already told you that in case of terpenoid all the reactions mostly undergoes rearrangement either aldol condensation or Michael addition के through. तो ये टोटली जो है इसका rearrangement aldol condensation और Michael addition पर dependable है। So now I will explain about the stereochemistry. Now I will explain about the stereochemistry of centonin. So here you see that centonin has 4 chiral center as indicated by stars. That chiral centers are represented asterisks at the point 10, 11, 7 and 6. 6, 7, 10, 11. Here you see that the numbering will be start from at the top of the alpha beta unsaturated position 1, 2 and 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and further move to the 11, 12 and 13. So therefore 8 racemates with centonin structures are possible. Out of these racemates alpha and beta centonin occurs in nature. So 4 chiral 8 racemates form. 8 racemates that means एक chiral center का एक रेसमेट मिक्सचर, जैसे अगर एक प्लस है तो एक माइनस होगा, तो 4 सेंटर है तो 4 का 4 प्लस होगा तो 4 माइनस होगा। तो इस तरह से वो 4 रेसिमेट्स का फॉर्मेशन करता है। रेसिमेट्स मीन्स रेसमेट मिक्सचर, 50% डी फॉर्म एंड 50% एल फॉर्म। सो द absolute configuration of alpha and beta centonins are represented here. Here you see that in case of alpha, first of all look at here, in case of alpha, one alkyl group as the base bond and the one carbon is attached with the base bond and one methyl group at the dash bond. लेकिन बीटा में क्या होता है, here you see that this is the बीटा केस में क्या होता है कि कार्बन बेस बॉन्ड से अटैच्ड होता है, सब बेस बॉन्ड से ही अटैच्ड, लेकिन यहाँ पर डैश बॉन्ड, एक एल्काइल ग्रुप हमारा डैश बॉन्ड होता है। यही एक दोनों को डिफ्रेंशिएट करता है, अल्फा सेंटोनिन और बीटा सेंटोनिन को। तो 6 अल्फा 11 अल्फा हाइड्रोजन 3 ऑक्सो 1 इंडिसमेडाइन 12 6 ऑलिड बीटा सेंटोनिन इसको कहा जाता है। Generally it is represented. So alpha and beta centonins are C11 epimers. Alpha centonin has S configuration at C11 where beta has R configuration. Epimers, what is the epimers? One point will be noted here that epimers, epimer और एनामर ये दो पोजीशंस होते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स में कार्बन एटम को इंडिकेट करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हम कोई ऐसा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लें, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट का हो चाहे किसी दूसरी फॉर्म का हो, अगर पहले कार्बन पर जो हमारा कायरल सेंटर, पहला कायरल सेंटर है और वहाँ पे डिफरेंसेस पाए जाते हैं डी और एल का, आर और एस का, तो ऐसे फर्स्ट कार्बन एटम, द डिफरेंसेस एट द फर्स्ट कार्बन एटम एट द कार्बोहाइड्रेट इन द कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड एनोमर्स। ऐसे पोजीशन एनामेरिक पोजीशन और ऐसे कार्बन एनामेरिक कार्बन कहे जाते हैं।
लेकिन अगर यही जो है एक्सेप्ट वन, पहले के छोड़ के किसी भी पोजीशंस पर हो जाए ये डिफरेंसेस, तो ऐसे सारे पोजीशंस को ईपीमर्स कहा जाता है। तो सो हियर यू सी दैट C11 ईपीमर्स, यानी जो 11 ईपीमर्स है यहाँ पे ये डिफरेंसेस पाया जाता है मेनली सेंटोनिन में, कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 11 पोजीशन है, ये 11 पोजीशन है। यहाँ डैश बॉन्ड पे एल्काइल ग्रुप है और यहाँ पे जो है वेज बॉन्ड पर एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। सो ये जो है S कॉन्फ़िगरेशन रखता है और ये जो है R कॉन्फ़िगरेशन रखता है। तो एक्चुअल में होता क्या है कि अगर मान लीजिए कार्बन, किसी में कई कार्बन जुड़े हैं इस तरह, और यहाँ पहले कार्बन पर डिफरेंसेस है, इसमें OH यहाँ है, इसमें H यहाँ, और इसी तरह से इसी को लिखा जा सकता है, एक दूसरे में H यहाँ करके OH यहाँ कर दें और बाकी सब इक्विवेलेंट हो, बस मेन डिफरेंस इस पहले में पाया जाए, तो ये दोनों कार्बन एक दूसरे के एनामेरिक कार्बन कहे जाते हैं, इनको एनामर्स कहते हैं। जैसे अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, तो इनके जो अल्फा और बीटा डी ग्लूकोज है ये एनामेरिक कार्बन है। सो हियर ए प्रॉब्लम इज अराइजेस, अल्फा सेंटोनिन एंजाइम when treated with zinc and H2SO4 gives hypocentonin. Hypocentonin converts into centonic acid when treated with HNO2 followed by I2ACOH. Centonic acid on treatment with diazomethane gives methyl ester. So we have to prove that what is the configuration of the products. So here you see that the configuration of the products can be determined by under these reactions. Here you see that the centonin is converted into oxime, and after that amine, and then this is converted to centonic acid, and then again converted into amine, and so further on. Here formation of, here you see that there is a formation of hydrazine rearrangement. हाइड्रोजीन रीअरेंजमेंट के थ्रू एन बेंजोइल एलिनीन का फॉर्मेशन होता है, जो बेंजोइल डेरिवेटिव होता है, जिसे बेंजोइल एलिनीन डेरिवेटिव कहते हैं। सो हियर दैट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ C11 कार्बन इन अल्फा सेंटोनिन इज आल्सो, यू कैन सी दैट अल्फा सेंटोनिन यहाँ दिखाया गया है S कॉन्फ़िगरेशन। हियर यू सी दैट दिस इज द S कॉन्फ़िगरेशन। Now I will explain the synthesis of centonin. This is given by some reactions. First of all, here you see that you can say that this is methyl benzoic acid. Structure of stereochemistry, that all is confirmed by this synthesis. तो बेंजोइक एसिड जो है बेंजोइक एसिड का डेरिवेटिव है, जिसे हम मिथाइल बेंजोइक एसिड भी कह सकते हैं, जो सोडियम और लिक्विड अमोनिया के साथ और इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ब्यूटाइल अल्कोहल के साथ और CH3I के साथ रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यह एक तरह से बर्च रीअरेंजमेंट इसमें हो रहा है और CH3 इंट्रोड्यूस हो रहा है इस ग्रुप में। आफ्टर दैट लिथियम एल्यूमिनियम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ जब इसका रिडक्शन कराते हैं तो आप एसिड जो है हमारा रिड्यूस्ड हो जाता है अल्कोहल में, और इसके बाद पुनः NBS एन ब्रोमोसल्फामाइड के साथ रिएक्शन जब कराते हैं तो या डाईमिथाइल सल्फाक्साइड के साथ, तो यहाँ एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ आप देख सकते हैं दिस एल्डिहाइड अंडर ट्रीटमेंट विथ फिनाइल एस्टर, दिस इज कन्वर्टेड इनटू एस्टर ester group. Once again there is the reduction by means of lithium and ammonia, and this lithium and ammonia there is formation of next one allyl halide का formation होता है। We have to see only outside of the ring structures, we have to see only the change in this structure here.
यहाँ पर हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं. आफ्टर दैट this molecule is again converted into the thionyl compound, which again converted by DMS. So yes, there is cyclization takes place in the presence of pyridic acid, and these cyclizations gives under LDA and आइडो एस्टर्स के प्रेजेंस में यहाँ पे फॉर्मेशन होता है एक अनस्टेबल एस्टर्स का, और ये पुनः जो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ अल्कोहल में आप देख सकते हैं ये कन्वर्ट हो जाता है. फाइनली अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू एसिड, एंड दिस एसिड इज अंडर साइक्लाइजेशन, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एस्टर. एक एल्कोहलिक ग्रुप है, एक एसिडिक ग्रुप है, तो यहाँ पर फॉर्मेशन अल्कोहल यानी साइक्लिक एस्टर का फॉर्मेशन होता है जिसे लैक्टोन्स कहते हैं. और ये दोनों जो है अंडर ऑक्सीडेशंस देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अल्फा सेंटोनिन एंड बीटा सेंटोनिन. इस तरह से अल्फा और बीटा सेंटोनिन का फॉर्मेशन हो जाता है. सो ओवर ऑल रिएक्शंस, ये सारे रिएक्शंस जो है दिस इज द मेन रिएक्शंस विच इज रिलेटेड विद द सेंटोनिन synthesis. So here you see that one is the alpha and other is the beta. How can you prove that this is the alpha and this is the beta? This differentiation has been seen at the center of C11 only. C11 कार्बन, C11 कार्बन कौन सा है? C11 कार्बन है यहाँ इस सेंटर पे, यहाँ पर जो है ये डिफरेंसेस देखने को मिलेगा, और यही एक दोनों जो है एक दूसरे को डिफ्रेंशिएट करते हैं. तो दिस ओवरऑल इज द सिंथेसिस एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन ऑफ सेंटोनिन. दैट्स ऑल.